Hello students, now I am starting chapter 5, that is arithmetic progression. So firstly we learned what is progression. Progression means series, and arithmetic progression is the series of numbers in which the difference between two consecutive numbers is always same. Difference पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो सीरीज लें, फॉर एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट. So here the difference is 3, again difference is 3 plus 3 ना ऐड हो रहा है. Same here it is plus 3. Next series if we take 200, 198, 196, 194, just like. So here the difference is minus 2. Here also difference is minus 2. Difference is minus 2. So it is also AP. If we take 2, 2, 2, 2 dot, means here the difference is 0. Plus 0 minus 0 both are same. So again 0 means difference are same. So these type of series are called arithmetic progressions. Now in this chapter we have to learn nth term of the AP and Sn means sum of n terms of the AP. So for example if we take here first term A means like here we took a series 2, 4, 6, 8, difference is 2. So here first term is 2, that is we assume by A. So an का फॉर्मूला वेरीफाई कर रहे हैं, दैट इज nth टर्म. an इज nth टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी. इस एपी को हम शॉर्ट में इसी टाइप से लिखेंगे a डॉट p डॉट. ओके, नाउ इफ वी टुक फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, फोर्थ टर्म इज a प्लस 3d. नाउ सी हियर n इक्वल्स टू 1 means first term, so n equals to 1 means a1, and here d is 0. Now here n equals to 2 because second term, so it is a2, and d is 1 means 1 less. Same here n equal to 3 because it is third term and d is 2d, and here n equals to 4 because it is fourth term a4 and d is 3. Now same if we put find n equals to n के लिए nth term अगर हम find करें तो एक कम हो जाएगा d means a plus n minus 1 into d. And here this n minus a plus n minus 1d is called nth term of AP. Clear? So here an will be a plus n minus 1 into d. This is nth term of AP. Where a is the first term, a is the first term, it is the first term, and d is the common difference. D is the common difference, and n is the number of terms. n is the number of terms. कितनी terms होंगी उस सीरीज में वो डिसाइड करेगा, number of terms. And an is the nth term, is the nth term, मतलब लास्ट टर्म कौन सी होगी वो डिसाइड करेगा. Okay, this is formula for nth term. Clear? Now after this we find the formula for Sn, and one more thing here, the nth term is also denoted by L, that is last term. Clear? An is also denoted by Tn भी हम कहीं कहीं लिखते हैं बट यहाँ हम L लिखेंगे. L means last term, लास्ट टर्म ऑफ द AP. क्लियर? L से भी डिनोट करेंगे तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. बोथ आर सेम. आफ्टर दिस वी फाउंड अ फॉर्मूला फॉर Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स. सो Sn इज द सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स. Here n टर्म्स में हमने फर्स्ट टर्म लिया a1, सेकेंड टर्म a2, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, ऐसे nth टर्म an. अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, Sn. मीन्स Sn इक्वल्स टू क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट डॉट दैट इज an. मैंने यहाँ पे an लिखा. अगर इसे मैं पहले एक टर्म लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, an माइनस 1. क्लियर? नाउ अगर एक और पहले टर्म लिखें हम तो क्या लिख सकते हैं, a n माइनस 2 प्लस तो होगा ही हम. ठीक है, a n माइनस 2 मीन्स एक टर्म और पहले हम लिखें.
3 टर्म्स हमने उधर लिखनी, 3 टर्म्स इधर लिखनी, कितनी भी टर्म्स लिख सकते हैं। नाउ तो Sn इक्वल्स टू a1 मीन्स क्या होगा, a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या था आपका a प्लस डी क्योंकि 2 माइनस 1d, सेम थर्ड टर्म इज a प्लस 2d, कॉमा नहीं प्लस आएगा, डॉट डॉट प्लस an माइनस 2 है तो a प्लस n माइनस 3d, वन लेस, सेम ईयर प्लस a प्लस n माइनस 2d and last is a plus n minus 1 into d, formula for nth term. Now we reverse the series again, Sn equals to, if we reverse it means a plus n minus 1d जो लास्ट टाइम है उसको हमने फर्स्ट पे लिखा, तो a plus n minus 1 into d, और जो सेकेंड लास्ट टर्म थी a plus n minus 2d वो हमने सेकेंड टर्म के नीचे लिखा, that is a plus n minus 2d। सेम ईयर थर्ड लास्ट टर्म को हमने थर्ड टर्म के नीचे लिखा, तो a प्लस n माइनस 3d प्लस डॉट डॉट, जो थर्ड टर्म थी वो थर्ड लास्ट प्लेस पे मीन्स a प्लस 2d, सेम सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट प्लेस मीन्स a प्लस d एंड फर्स्ट टर्म लास्ट मीन्स a। क्लियर? अब इनको कंसिक्यूटिवली हमें ऐड करना है, मीन्स जो फर्स्ट टर्म फर्स्ट वर्टिकली ऐड कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑन एडिंग, चाहो तो आप लिखें, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें यहाँ पे ऐड करना है। ओके, तो प्लस करना है इन दोनों को, प्लस में साइन लगाइए ना लगाइए, नॉट नीडेड। सो Sn और Sn अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2Sn इक्वल्स टू a में a प्लस n माइनस 1d जब हम ऐड करेंगे तो लाइक टर्म्स क्योंकि ऐड होती हैं तो a में a ऐड होगा मीन्स 2a, तो इट इज़ 2a प्लस n माइनस 1d एज इट इज़, इसको मैंने ब्रैकेट में कर लिया। सेम यार सेकंड टर्म में जब हम सेकंड लास्ट टर्म ये ऐड करेंगे, इसको मैं रफ साइड शो कर रहा हूँ, बाद में रेस कर दूंगा, a प्लस डी प्लस a प्लस n माइनस 2d। अगर हम इसे ऐड करें तो a में a ऐड होगा, लाइक टर्म्स ऐड होती है तो ये 2a प्लस इन दोनों में मैं d कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस n माइनस 2। नाउ 2a प्लस d, n प्लस का है 1 प्लस और 2 माइनस मीन्स माइनस 1, so see it is 2a plus n minus 1d, अगर हम d को बाद में लिख लें no problem, so both are same, that means again we got 2a plus n minus 1 into d। now if we add this term also means a plus 2d plus a plus n minus 3d, clear? इसको भी मैंने ऐड किया इन दोनों टर्म्स को, तो a और a again 2a plus d common, so here it is left 2 plus n minus 3, अगेन 2a प्लस डी, n प्लस का पहले लिख लिया, 2 प्लस और माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 1 वी गॉट, सो हेयर वी गॉट 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस डॉट डॉट प्लस, क्लियर? सो हेयर प्लस, अगर हम इस टर्म को भी ऐड करें तो जरा देखो ये a प्लस n माइनस 3d और a प्लस 2d, यही तो a प्लस n माइनस 3d प्लस a प्लस 2d, सॉल्यूशन क्या मिला, 2a प्लस n माइनस 1d। So 2a plus n minus 1 into d प्लस अगर हम इन दोनों को भी ऐड करें तो ये वाला टर्म है मीन्स 2a plus n minus 1d, और अगर हम लास्ट टर्म को भी प्लस करें तो वो भी यही आ जाएगा 2a plus n minus 1 into d। क्लियर? इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको रेज आउट कर रहा हूँ। नाउ सी 2Sn इक्वल्स टू, देखिए 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d हर बार ऐड हो रहा है, और ये कितनी टर्म्स हैं ऐसी, वो हमें ऊपर यहाँ से मिलेगा। फर्स्ट टर्म थी ये, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n माइनस 2th टर्म, n माइनस 1th टर्म एंड nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म से लेकर n टर्म्स तक कितनी टर्म हुई टोटल, n टर्म्स। अब कोई भी सेम टर्म को अगर हम n बार ऐड करें या फिर उसको n बार मल्टीप्लाई कर दें, बोथ आर सेम, जस्ट लाइक अगर हम एक एग्जांपल लें, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 2 3, अगर मैंने प्लस करेंगे तो 3 3 6 3 9, या फिर क्योंकि 3 टाइम्स है तो क्या हम इसे 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और सॉल्यूशन सेम आएगा 9। ठीक है, यानी कि हमने एक टर्म को 3 बार ऐड किया तो हमने उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, तो वो भी सेम आ रहा है। या फिर अगर मैं 3 को 2 टाइम्स ऐड करूँ तो 3 और 3 क्या हुआ 6, या फिर हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर वही आ रहा है 6। ठीक है, सेम ईयर 2a प्लस n माइनस 1d जो टर्म है वो कितनी बार ऐड हो रही है, n बार।
इट मीन्स हम अगर इस टर्म को n से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इसके सम के इक्वल आएगा। जैसे यहाँ पे 3 को 3 टाइम ऐड किया 9 और वो 3 इंटू 3 तो वो भी 9 था। क्लियर? सो हियर वी पुट इट टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको हमने ब्रैकेट में ही पुट किया। ओके, सो नाउ आई एम अरेजिंग इट दिस वन। नाउ दिस 2 is here in multiply, so if we shift to RHS then it will go to in divide. So Sn equals to n upon 2 2a plus n minus 1 into d. This is your formula for Sn, sum of n terms. इसी फॉर्मूले का एक फॉर्म और होता है, अगर हम इसे an के टर्म में कन्वर्ट कर लें वो बहुत इजी है, उसको भी देख लीजिए यहीं पे। तो 2a है, मीन्स अगर हम इसको n अपॉन 2a को हम ब्रेक कर लें a प्लस a और प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगर हम एज इट इज़ रखें, तो ज़रा देखिए जो a प्लस n माइनस 1 डी लास्ट के 2 टर्म्स हैं, क्या वो nth टर्म के इक्वल आ रहा है? यस, दैट मीन्स वी कैन पुट इट an. सो n अपॉन 2 a प्लस an, दिस इज ऑल्सो Sn, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर Sn. ये कब यूज़ होगा? जब आपको Sn फाइंड करना हो, मीन्स Sn, n, a और an, इन 4 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म्स आपको गिवन है तो आप 4th फाइंड कर लोगे। इसी को एक और फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। क्यों? क्योंकि जो an है nth टर्म उसे हम लास्ट टर्म l से भी डिनोट करते हैं। तो इस फॉर्मूले का एक फॉर्म और भी आ गया। तो इस तरीके से सम ऑफ n टर्म्स के 3 फॉर्मूले आपको मिल जाते हैं। 3 क्या 2 ही हैं, तो कुछ नहीं, an और l तो एक ही है, बस केवल इससे ये कन्वर्ट किया हमने। ठीक है, तो इस टाइप से इसका वेरिफिकेशन हो जाता है। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज So exercise 5.1. In this exercise, in which of the following, first question is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progressions and why? First is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for first kilometer. First kilometer का fare दिया हुआ है 15 rupees and rupees 8 for each additional kilometer, और हर एक्स्ट्रा किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ चार्ज है। तो ये बताना है कि हमें ये एपी बन रही है फिर नहीं। सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट आई एम डूइंग, इन विच फेयर फॉर टैक्सी फेयर है, हम केवल फेयर इसको लिख रहे हैं, फेयर फॉर 1 किलोमीटर डिस्टेंस दैट इज ₹15। नाउ इसको हमने A1 कह दिया, फर्स्ट किलोमीटर A1 फर्स्ट टर्म यानी कि। सेम यार फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स, तो 2 किलोमीटर के लिए देखिए फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज तो सेम है, और अगला जो किलोमीटर बचा 1 किलोमीटर उसके लिए चार्ज क्या है 8 रुपीज़, इट मीन्स इट विल बी 23, और इसको हमने A2 कह दिया ₹23। सेम फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स इक्वल्स टू ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड रिमेनिंग किलोमीटर्स आर 2 and each kilometer by 8 rupees per kilometer. So we got 8 plus 8, 8 plus 8, 16 plus 15, that is 31, and it is assumed as A3. Same here, if we find for 4 kilometers, mostly 4 terms we find. So 4 kilometers equals to ₹15 for first kilometer plus 8 plus 8 plus 8 equals to 8 3 are 24 and 15, that is 39, and it is assumed as A4. Now we got here 4 terms, so we have to find the difference to check that it is AP or not. So A2 minus A1, that is equals to 23 minus 15, and we subtract, so we get 8. Same A3 minus A2, again 31 minus 23, that is equals to again 8. Now A4 minus A3, it is also 39 minus 31, again we got 8. Now all the differences are same, therefore we get that it is an AP. So therefore this situation forms an AP. This situation forms an AP. Forms an AP arithmetic progression. Clear? This is the first question. Same third question you have to do. Now second question I will solve. Here we found 3 differences, A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3. If 2 differences are not equal, then third difference is not needed.
क्योंकि दोनों इक्वल है। थर्ड केवल तब हम फाइंड आउट करते हैं जब दो इक्वल हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट इज द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, मीन्स उस टाइम जो प्रेजेंट होगी उसका 1/4 माइनस होगी, ठीक है। सो लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इनिशियली मान सकते हैं या स्टार्टिंग में बी एक्स मान लेते हैं, हटाइए, नहीं कुछ ऐसे हम करते हैं, एक्स सेंटीमीटर क्यूब या लीटर कोई भी यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। एक्स यूनिट लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। नाउ हमें जो सीरीज चेक करनी है वो किस में चेक करनी है कि रिमूवल के बाद कितनी एपी बन रही है फिर नहीं, और रिमूवल कितना हो रहा है 1/4 ऑफ प्रेजेंट एयर। सो एयर लेफ्ट और रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, एयर प्रेजेंट लिख दो, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, एक बार रिमूव करने के बाद, और इसको मैं A1 यहीं पे मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट इज x माइनस 1/4 ऑफ x, क्लियर, जो x प्रेजेंट थी उसका 1/4 माइनस होगा, मीन्स दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई x, so we can take LCM, that is 4 into x, so it is 4x minus 1 into x, so it is 1x, and 4x minus 1x, that is 3x upon 4. This is the value of A1, clear. Now we found A2, that is difference, same air present in cylinder after second removal. अब हम दोबारा रिमूव करेंगे एयर, तो उसके बाद कितनी बचेगी उसको हम A2 एज्यूम कर दे रहे हैं। अब जो एयर है उसी का तो 1/4 माइनस होगा, और उसी में से माइनस होगा मीन्स 3x अपॉन 4 में से इसी का 1/4, तो 1/4 ऑफ 3x अपॉन 4, बस यही स्टेप आपको समझना है, उसके बाद क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एयर है, क्योंकि फर्स्ट रिमूवल के बाद यही तो एयर बची 3x अपॉन 4, तो इसी में से हमें माइनस करना है और इसी का 1/4, क्लियर। नाउ सिंप्लीफाई, सो 3x अपॉन 4 माइनस 1/4 इंटू 3x अपॉन 4, 4 4 जा 16, और 4 अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 16, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, सो 12x माइनस 16 बन जा 16, 1 इंटू 1 इंटू 3, दैट इज 3x, 12 minus 3 will be 9x upon 16. It is A2. Now we find A3. A4 की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम देख रहे हैं इसका डिफरेंस इक्वल नहीं आएगा। So air present in cylinder after third removal, that is A3 equals to, अब एयर कितनी बची 9x अपॉन 16, और इसी में से माइनस होना है, इसी का 1/4, तो 1/4 ऑफ 9x अपॉन 16, क्लियर। इसको हम ब्रैकेट में पुट कर दे रहे हैं। नाउ इट इज इक्वल्स टू 9x अपॉन 16 माइनस 1/4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 9x अपॉन 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64, और अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा 64, तो 16 4 जा 64, 4 9 जा 36x माइनस 16 4 जा 64, 1 जा तो 1 आया, 1 इंटू 1 इंटू 9, दैट इज 9x, 36 माइनस 9, दैट इज 27x अपॉन 64. दिस इज द टर्म A3, clear. So we found A1, A2, A3, 3 terms we found. After this we have to erase it, and we have to find the differences. So A2 minus A1, A3 minus A2 and A4 minus A3. मैं इसको थोड़ा रहने दे रहा हूँ, जो A1 A2 जो टर्म्स हैं उनको छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे विजिबिलिटी रहे, पता रहे क्या टर्म्स हैं। ओके, मैंने केवल ये 3 टर्म्स को छोड़ा है, ठीक है, A1 A2 A3 है यहाँ पे। सो फर्स्ट डिफरेंस अगर हम फाइंड करें तो A2 माइनस A1, और A2 कितना है 9x अपॉन 16 और A1 3x अपॉन 4, इनको माइनस करना है, तो 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4, वी कैन टेक एलसीएम, दैट इज 16, 1 जा 16, 1 इंटू 9, सो इट इज 9x, minus 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, so it is 12x. Now 9x minus 12x, so it is minus 3x upon 16, that is your answer. Now next, so it is A3 minus A2. Third term में से second term, third term is 27x upon 64, minus करना है second term, that is 9x upon 16. Again we have to take LCM, so LCM is 64,
1 जा, so 1 into 27 same 27x minus 16 4 जा 64 4 and 4 into 9 that is 36x. Now 27x minus 36x, so minus 9x upon 64. Here 3x upon 16, how we can check that are equal or not? So if we multiply by 4, so minus 3 4 ja 12x upon 16 4 ja 64. Clear? Now we see that here it is minus 9x upon 64 and here it is minus 12x upon 64. Denominator is same and numerator are not equal, that means differences are not equal. So therefore this situation is not forming AP. So this situation doesn't form an AP. Does not form an AP. Clear? Remaining parts you have to do yourself. Now we start second question. Second question is, write first four terms of the AP when the first term A and the common difference D are given as follows. So here only one part we solve first, remaining part you have to yourself. Calculation है only plus minus, वो आप खुद से कर लेंगे. Okay. So first term is here A equals to, no I am not doing first, I am doing fifth part. Okay. It is calculation थोड़ी सी difficult लग रही है तो वो करा देते हैं. Okay. So here A equals to minus 1.25 and D equals to minus 0.25. प्लस माइनस है इसलिए करते हैं. फर्स्ट तो बहुत ईजी है. तो हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स, स्टार्टिंग की फोर टर्म्स. तो पहली टर्म पहले हमें फाइंड करनी है A1 और A1 क्या होता है A, दैट इज माइनस 1.25. इट इज A1. नाउ A2 दैट विल बी A प्लस 2 माइनस 1D. सो इट इज A प्लस D 1D. A दैट इज माइनस 1.25 plus D that is minus 0.25. So open the bracket, so minus 1.25 plus minus minus 0.25 and both the terms are same sign means minus, so they are added, so minus 1.50. Now third, so A3 that is equals to A plus 3 minus 1D, so it is 2D. Now A minus 1.25 plus 2 into D that is minus 0.25. माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा 0.25, सो इट विल बी 0.50. नाउ इफ वी एड इट, सो माइनस 1.75. फोर्थ टर्म दैट इज A4, इट इज A प्लस 4 माइनस 1D, सो इट इज 3D. A दैट इज माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू D दैट इज माइनस 0.25. नाउ माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 0.25, 25 3 is 75, so 0.75. If we add it, so minus 1.25 plus 0.275, so minus 2.00 or minus 2 we can write. So these are the first four terms. Remaining parts you have to do yourself. Now third question, see here only. It is also very simple. For the following APs, write the first term and the common differences. First term find करना है and common difference find out करना है. So here we are taking third part. AP is 1 upon 3, 5 upon 3, 9 upon 3 and 13 upon 3. 9 upon 3 and 13 upon 3 and dot. Here we have to find only first term and last term. Oh sorry, common difference. So first term that is this. So A equals to 1 upon 3, simple. And D common difference. So we subtract any term from the next term. मीन्स 1 अपॉन 3 में अगर माइनस करना है तो नेक्स्ट हम 5 अपॉन 3, अगर हम 5 अपॉन 3 माइनस करेंगे तो 9 अपॉन 3 में से. तो हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं डिफरेंस A2 माइनस A1. D होता है A2 माइनस A1 या आप A3 माइनस A2 भी लिख सकते हैं. तो A2 इज़ 5 अपॉन 3 माइनस A1 इज़ 1 अपॉन 3. डिनोमिनेटर इज सेम, सो LCM 3, 5 माइनस 1, न्यूमरेटर इज ऑल्सो सेम, 5 माइनस 1 इज़ 4 अपॉन 3, दैट इज D. तो A और D दोनों वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है. इट इज़ थर्ड क्वेश्चन. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फोर्थ of this exercise, last question. Now fourth question is which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. पहले आपको चेक करना है AP है या नहीं. अगर AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है. फर्स्ट टर्म तो आपको स्टार्टिंग में ली जाएगी एंड राइट 3 मोर टर्म्स और उसके आगे की 3 टर्म्स. तो हर पार्ट में 4 टर्म्स दी हुई हैं, मीन्स आपको 5th 6th और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है. For example, if we solve here
फर्स्ट पार्ट, चलिए पहले फर्स्ट पार्ट ही करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 2, 4, 8, 16. Clear? 2, 4, 8, 16 is given. Now if we found a2 minus a1, that is 4 minus 2, that is 2. a3 minus a2, that is 8 minus 4, it is 4. Both are not equal, then third difference is not needed, so therefore it is not AP. ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाएगा. AP है नहीं तो आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना है. अगर कोई AP है तो आपको सॉल्व करना है. फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट इज 3, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2. Clear? These are 4 terms and dot dot. Now firstly we found a2 minus a1, that is 3 plus root 2 and minus 3. So 3 से 3 cancel, so we get root 2. Now if found a3 minus a2, so a3 is 3 plus 2 root 2, minus करना है 3 plus root 2. Clear? So in the bracket sign changed, so 3 plus 2 root 2 minus 3 or minus root 2. 3 से 3 again cancel, 2 root 2 minus root 2, so it will be root 2. दो डिफरेंस सेम है, मीन्स हमें थर्ड वेरीफाई करना है. तो थर्ड इज a4 माइनस a3, दैट इज 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस, क्या हम एक स्टेप डायरेक्ट कर लें, इट इज़ 3 प्लस 2 रूट 2. अगर यहाँ ब्रैकेट में आएगा माइनस है तो दोनों साइन माइनस के हो जाएंगे. सो माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कैंसिल, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, दैट विल बी रूट 2 ओनली. रूट 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 1, सो 1 रूट 2. ऑल द डिफरेंसेज आर सेम, सो देयरफॉर it forms an AP. It forms an AP, arithmetic progression. Now if it is AP, so here first term is 3 and common difference means जो differences आए हैं वो सारे common difference है, that is रूट 2. अब हमें इसकी next 3 terms find करनी है. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक तो है ही, मीन्स फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड सेवेंथ टर्म, यही सारी टर्म्स फाइंड करनी है. These 3 terms we have to find. So A5 means fifth term, it will be A plus 5 minus 1D means A plus 4D. So A plus 4D. Now A, that is 3 plus 4 into D, that is root 2. So 3 plus 4 root 2, that is your answer. A6 A plus, अगर हम इसको एक्सप्लेन करके देखें फॉर्मूला क्या है, A plus n minus 1D means 6 minus 1 into D. इसको भी हम ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं ऐसे ही. So 3 plus 6 minus 1 is 5 and root 2. Now 3a plus formula, a plus n minus 1d, so 7 minus 1 into d. Now a, that is 3 plus 7 minus 1 6 and d is root 2. So these are the next 3 terms. Now one more term I am solving here, that is remaining are same, so I am solving 12th part. And remaining parts do yourself, all are same. Differences find out करना है, अगर differences same होंगे तो AP होगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है. सो आई एम सॉल्विंग 12th पार्ट. ये रूट दिया हुआ है तो माइनस थोड़ा वैसा है, इसलिए इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं. सो AP सीरीज इज गिवन रूट 2, रूट 8 एंड रूट 18 एंड रूट 32. रूट 18 एंड रूट 32. देखिए डायरेक्ट तो आपको माइनस करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है ना. सो अगर हम इसको थोड़ा एक स्टेप सॉल्व कर लें तो और करके मैं ऐसे लिख दूँ रूट 2 कॉमा रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के अगर हम फैक्टर देखें तो क्या होंगे, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, एक पेयर बाहर मीन्स 2 रूट 2. क्लियर. ऐसे ही रूट 18 को अगर हम सॉल्व करें तो रूट 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 का एक पेयर मीन्स 3 रूट 2. सेम है रूट 32, दैट विल बी रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स है तो 2 पेयर बन गए मीन्स 4 बाहर रूट 2. क्लियर. तो इनको हमने वही सॉल्व करके लिख लिया, 2 रूट 2 एंड 3 रूट 2 एंड 4 रूट 2. अब क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा. सो हेयर a2 माइनस a1, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स रूट 2. a3 माइनस a2, दैट इज अगेन 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 कॉमन, 3 माइनस 2 इज 1, सो इट इज 1 रूट 2 मीन्स रूट 2. a4 माइनस a3, अगेन सेम 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, root 2 common, so 4 minus 3 is 1, so it is 1 root 2 means root 2. All the differences are same, so therefore it forms an AP. Therefore it forms an AP. Forms an AP. और अगर ये AP फॉर्म हो रही है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है. मीन्स A हम लिखें फर्स्ट टर्म, दैट इज रूट 2, और D जो डिफरेंसेस आए हैं वो सारे डिफरेंस है, दैट इज रूट 2. नाउ वी हैव टू फाइंड A5.
that is a plus n minus 1d means 5 minus 1 into d. तो a is root 2 plus 5 minus 1 is 4 and root 2. 4 root 2 और root 2 ऐड होगा तो 5 root 2. Same here a6 and a7. a6 is a plus 6 minus 1d. a is root 2, 6 minus 1 is 5 and root 2. root 2 plus 5 root 2 again 6 root 2 ऐड हो जाएगा. a plus 7 minus 1d क्योंकि a plus n minus 1d होता है फॉर्मूला. a is root 2, 7 minus 1 is 6 root 2 plus 6 root 2 that is 7 root 2. So these are the three terms. Now remaining questions you have to do yourself. Now this exercise